Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to CXO Global TV. This is your host and moderator, Babar Waris. I am the head of community at CXO Global Forum, which is a knowledge sharing platform determined to play its part in changing our economy to a knowledge economy. We have one of the best CXOs from worldwide and Pakistan as well, who are committed to share knowledge. Welcome to yet another episode of Mentor Up show, where we connect startups and mentors to nurture the Pakistani startup ecosystem to the next level. We raised more than $375 million last year, which is 5 times higher than the 2020 year, and nearly two times, which is 2 times more than the last 6 years combined. So without further ado, let's start the show where we have our mentor and the startup founder ready to exchange knowledge. I would request Mr. Swak Saab to introduce himself to our audience. Then Mr. Raj Kumar can take over with his introduction, followed by a 3-minute elevator pitch and present a pitch deck where a question and answer session can also take place for maximum value. So over to you, Ashfaq Saab. Great, Babar. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Thanks for CXO Global and Babar for inviting me in this show. CXO Global is one of the great platform where we all industry specialists is coming together and sharing our knowledge to the actually industry. I think that this is our also responsibility to pay back to some of our newcomers or new colleagues to help them and play some role to building these guys. My name is Ashfaq Ahmed, and I am General Manager Technology in EFU Life. I have been an experience of more than 23 plus years in the different industries. Last 15 years, I've been associated with insurance companies, national and international. I have also involved in mentorship role since some few years. Some of the startup is already successful and some of them is in progress. I work for EFU Life. My company EFU Life, you all know that this is one of the largest life and family takaful insurance company in Pakistan. We have having more than 350 branches and more than 10,000 feet on the street sales force and managers in all over Pakistan. EFU Life, we've been I've been associated with them about a decade, like 10 years that I've been associated, and especially in the last 8 years plus, that we have made a significant progress in transition of technology throughout the organization. We have adopted technology culture in the organization from top to bottom. We as a management convinced that technology play a vital role to sustain in this market. So that's from my side. That's great, Ashfaq Saab. Over to you, Raj. You may introduce yourself and then we may go ahead with your elevator pitch. Assalamu alaikum. My name is Raj Kumar. I am the founder of Decide. My professional background is related to custom clearance, shipping, and international freight forwarding. I have almost 9 years of experience in the supply chain management. The idea of creating the Decide came into my mind when I personally faced bundle of problems in getting a trucks from the local market. जैसा कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोफेशनल को एक ट्रक को प्रोक्योर करने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं और हमें ब्रोकर्स की तरफ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, तो हमने ये सोचा कि आम शिपर को कितने प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने 2018 में डिसाइड को बनाने का फैसला किया। और still Decide is a bootstrap company, and Decide is basically on-demand trucking service marketplace which helps shippers to book the trucks from the pool of verified transporters under our innovative bid price matchmaking platform.
तो इससे फायदा ये होता है कि हम कस्टमर सर्विस का जो एलिमेंट मार्केट में मिसिंग था और जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में मार्केट में काम हो रहा था, उन इनएफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया था। और जैसे इसको लॉन्च भी हमने किया था जनवरी 2020 में, मार्केट में रिस्पांस अच्छा आया था, लेकिन हमारा स्टार्ट करना लॉकडाउन के पीरियड का स्टार्ट होने के साथ ही इत्तेफाक से, तो वो कुछ और ही तरफ स्टोरी इसकी डाइवर्ट हो गई थी। लेकिन ऑल एंड ऑल द रिस्पांस वाज गुड एंड वी आई कैन से कि हम उन लोगों में से है जो इसकी नई मार्केट क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि 2020 में एज सच इतना इस चीज की ना ही अवेयरनेस थी, ना ही डिजिटल लॉजिस्टिक। उसके बाद काफी प्लेयर्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है, एंड दे आर हेवीली बैक्ड बाय द वीसीज, सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन जो डिसाइड का जो मेन था वो उसमें ये है कि हम स्टेक होल्डर्स को इस तरीके से एम्पावर करें ताकि किसी भी किस्म का डैमेज हमारे स्टेक होल्डर्स को ना हो। We have a neat and clean policy for the transporters and the shippers. We are not damaging even a single party of the logistic industry because ultimately we have to play on the asset light model. So सप्लाई चेन का हमारा बैकग्राउंड में जब एफसीएल के कार्गो की रिक्वायरमेंट आती थी तो हमारा कस्टमर हमसे कहता था कि आप ट्रक की सर्विस भी खुद कर लें। वो हम करते थे और चल भी रहा था, लेकिन वो डिजिटल नहीं था, उस टाइम पे मैनुअल था, तो जिसकी वजह से डिसाइड का वजूद आया। और उसके बाद इस चीज को हमने अकेले ही कंपनी आखिर में स्टैंड अप कर दी इसकी। और अभी तक भी मैं सोलो फाउंडर हूँ, द कंपनी स्टिल बूटस्ट्रैप, लेकिन हमने इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया था, लेकिन उनका रीजन भी यही था कि हम किसी भी तरीके से फंडिंग लेके इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि सारे इन्वेस्टर्स पे एक बंच ऑफ पीपल, सिलेक्टिव बंच ऑफ पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन टू इन्वेस्ट इन एवरी स्टार्टअप व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से अच्छा, हमने थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आई कट यू ऑफ हियर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। राज साहब, कैन यू एक्सप्लेन द टर्म एफसीएल, बिकॉज हो सकता है हमारी ऑडियंस को इसका थोड़ा अंदाजा ना हो, तो अगर आप उसका जी जी ब्रीफली बता दें। FCL is the full container load. ओके, सो And व्हाट डज दैट मीन्स? full container load means this is not a loose cargo. This is a cargo uh, which is moved in the 20-foot or 40-foot container boxes. Okay, okay, right. Yeah. So Ashwat sahab, any questions? Then या राज, आपकी टारगेट मार्केट क्या है इस वक्त? what you are Target targeting? market, yeah, target is all commercial importers, exporters, manufacturers, distributors who need to move the commercial cargo from point A to point B. Okay. And did you basically connect with this actually big giants जो transporters के हैं, or you basically targeting individual जो truck owners हैं उनको आप target कर रहे हैं? What is your basically strategy for that? हाँ जी, बेसिकली हमें टारगेट करना है जो इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स हैं जो कि छोटे पैमाने पे काम करते हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस शिपर्स तक नहीं होती। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड फैशन। उसमें डिपेंडेबिलिटी इतनी अजीब तरीके से होती है कि अगर ब्रोकर का मूड ऑफ हो जाए तो हो सकता है कि ट्रकर 3 दिन तक गाड़ी ना लगा सके। इवन शिपर अगर किसी एक इनएफिशिएंट ब्रोकर को कॉल करता है, क्योंकि ब्रोकर इज वर्किंग इन द पर्सनल ह्यूमन कैपेसिटी, और कैपेसिटी अगर का जिक्र करते हैं तो कैपेसिटी में लिमिटेशंस। Okay. वो So एक दिन में जी how you basically, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि लोगों को आप अपनी एप्लीकेशन पे लेकर कैसे आएंगे? How you basically what is the incentive in this, कि अगर वो आपकी एप्लीकेशन से बुक करें तो ease of actually, एक तो ease मुझे समझ आ रही है, और जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो इतना एजुकेटेड सेक्टर नहीं है। सो व्हाट इज योर एक्चुअली थॉट ऑन इट and how you basically connect with them? Is there any strategy? Are you going towards them individually, or you think के सिर्फ डिजिटल एक्टिविटी के साथ ही कुछ चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी? What is your take on it? अच्छा, इसमें जो हमारे पॉपुलेशन का जिक्र जहां तक है, तो इस पे शिपर सेगमेंट जो हमारा है, जो कस्टमर होगा हमारा, दे आर प्रीटी मच एजुकेटेड। ओके। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी काफी हद तक एजुकेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर कोई टच मोबाइल स्क्रीन के ऊपर फेसबुक देख सकता है तो मेरी ऐप भी यूज कर सकता है।
और हमारा वेब एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टर के लिए इतना एफिशिएंट और आसान बनाया गया है कि वो इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री का बंदा हूं तो वो सारे मॉड्यूल्स में मौजूद हैं जिसमें ट्रांसपोर्टर्स को इंफॉर्मेशन फेच करने में टाइम लगता है। ये क्यों ठीक है। और कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करने का मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसको लॉन्च किया था मैंने अपने ऑफिस के बाहर सिर्फ एक बैनर लगाया था। We got 50 plus app downloads within 1 month and 30 plus bookings within 1 month. Out of which we got 2 national level companies. एक नेशनल लेवल कंपनी इज द पार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज इन लाहौर और दूसरी राजिक इंटरनेशनल जो कराची में है। राजिक वालों का अपना भी एक ट्रांसपोर्ट डिवीजन है, लेकिन राजिक वाला फिर भी मेरा कस्टमर बनने जा रहा था। ठीक है। एंड वी गॉट अराउंड 6 करोड़ रुपए का कमिटेड बिजनेस था उनका, लेकिन वो एग्जीक्यूशन होनी थी मार्च के अंदर, तो मार्च में लॉकडाउन आ गया तो वी वर अनएबल टू एग्जीक्यूट एनी बुक। अच्छा, तो कस्टमर sorry to interrupt you, Ashfaq Saab, you may question him, but I would like to ask you a question as well, Raj. What about the competitors in this industry? जैसे कुछ नाम है मेरे सामने जिसमें ट्रकिन है और ट्रकर है, तो how do you plan to compete with this guy? आपका USP क्या है compared to them? हमारा यूएसपी ये है कि मैं अब ये क्योंकि लाइव भी होने जा रहा है तो मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाऊंगा वगैरह के लिए, ठीक है, क्योंकि उनसे मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रह चुका है। हमारा यूएसपी जो है वो भी अभी प्रॉपर तरीके से बताना यानी कि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। अब जो कंपटीशन है हमारा, ठीक है, दे हैव अप्रोच बाय सर्चिंग ऑन माय शिपिंग कंपनी प्रोफाइल। इनका एक बंदा मेरे ऑफिस भी आ चुका है और उसको वो पता नहीं था कि हम राजकुमार से बात कर रहे हैं, राजकुमार के फाउंडर साइड। उसको ये लगा कि शिपिंग का बंदा इसको अपनी सर्विस ऑफर करना चाह रहे हैं। तो माय कंपटीशन हैज बीन विजिटिंग टू माय ऑफिस। तो इस पे फिर हुआ ये कि मैंने उनसे कहा कि यार आपका ऐप तो काम कर नहीं रहा, लेकिन आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दे हैव द डेड एप्लीकेशन। ठीक हो गया। तो जो डिजिटल एलिमेंट है जिसके ऊपर डिजिटल लॉजिस्टिक की बात की जा रही है, जब वो चीज ही मिसिंग है तो दे कैन नॉट कॉल देमसेल्फ एज द डिजिटल स्टार्टअप। Still they are working on the manual mechanism. Okay. ठीक है। That answers my questions pretty much. Ashfaq Saab, over to you. अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा। मैं I can challenge, if this video is going to be live, I can challenge जितने मॉड्यूल्स मैंने अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड किए हैं इतने कंपटीशन के पास भी नहीं है। Okay. और ये मॉड्यूल जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी ट्रक बुकिंग इज नॉट लाइक जस्ट कॉलिंग अपॉन अ टैक्सी और रिक्शा। बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है सर, इसको समझने भी लोगों को सालों साल चाहिए। फिर जाके डिजिटल फिर उस बंदे को प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आएगी, फिर उस एक्सपर्टीज को वो कन्वर्ट करेगा डिजिटली। टेक टाइम चाहिए इस चीज के लिए। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, हम आपकी पिच डेक को गो थ्रू करते हैं और उसके साथ साथ अशफाक साहब जो है ही कैन आंसर क्वेश्चन यू रिगार्डिंग योर स्टार्टअप। यू कैन शेयर योर पिच डेक। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही करने लगा हूँ सर, एक सेकंड प्लीज। तो सर डिसाइड इज बेसिकली द ऑन डिमांड ट्रकिंग सर्विस मार्केट प्लेस, जहाँ पे शिपर अपने ट्रक बुकिंग रिक्वेस्ट मार्केट प्लेस पे पोस्ट कर सकता है और उसी मार्केट प्लेस पे हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि इन सबको इक्विप करता है, इनेबल करता है कि ये आपस में ट्रांसपेरेंट डील और ट्रांजैक्शन कर सकें जिसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हिडिंग नहीं होती। हमारा मकसद ये है कि हम लॉजिस्टिक को आसान बनाए सबके लिए और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन लॉजिस्टिक पार्टनर बने लोगों का इन फ्यूचर। Our value proposition is if there is a digital element, then that must be in the digital domain, not the manual domain. अगर हमारे ऐप पे कोई काम करेगा तो उसको एक फोन करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वो ऑटोमेटेड वर्कफ्लो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना शिपर को आए ना ट्रांसपोर्टर्स का आए। तो सब प्रॉब्लम इसमें यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर से ट्रक बुक करना इज प्रीटी मच अ टेरिबल जॉब, जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे एक ट्रक की बुकिंग के लिए 3 से 4 ब्रोकर्स होते हैं। हम उन ब्रोकर्स के अगेंस्ट नहीं हैं, हम उन ब्रोकर के जो प्रोसेसेस में इनएफिशिएंसी है उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि ब्रोकर को, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ब्रोकर है तो ब्रोकर होना ही नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ब्रोकर हैं और रहने भी चाहिए, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर वर्कफ्लो के तहत काम करें ताकि इंडस्ट्री में एक एसओपी डेवलप हो जाए कि ये चीज इस तरीके से कम टाइम में हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है।
अगेंस्ट इसके कनेक्शन में सर्विस लेवल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। आमतौर पे आपको ब्रोकर की तरफ से मिस कॉल आ रही होती है, वो कॉल नहीं कर पाता। अगर आप कॉल करेंगे तो उसका नंबर बिजी जाएगा, कॉल वेटिंग का ऑप्शन ही एक्टिवेटेड नहीं होता उनके पास। तो इस पे शिपर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसका अगर 10-12 मिलियन का माल अगर कंटेनर जा रहा है, उसको ये भी पता ना चले कि यार मेरा ब्रोकर के पीछे ब्रोकर कौन है और गाड़ी किस बंदे की लगी है, बिल्टी किस बंदे की है, मुझे तो पता ही नहीं किस चीज का। बस ये पता है कि गाड़ी निकल गई, लेकिन गाड़ी आप इसमें किधर है नो रियल वन टाइम नोस। ट्रैकिंग भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं राजेश सर, में आप रियल टाइम ट्रैकिंग भी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं। उसपे सारा यानी कि हर बंदा उस पर चेक कर सकता है, ट्रांसपोर्टर, शिपर एंड वी एज ए कंपनी ओनर हम भी चेक कर सकते हैं कि हमारा ट्रक अभी किस टाइम पे कहाँ ट्रेवल कर रहा है। और उसके बाद आ जाइए टाइमली एक्सेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू मूव द कार्गो विद इन 4 आवर्स एंड द ब्रोकर इज रिस्पॉन्डिंग यू आफ्टर 8 आवर्स, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसी तरीके से आपका ट्रक यहाँ से लाहौर चला गया, लेकिन लाहौर में आपके पास ऐसा कोई ब्रोकर नहीं है जो कि आपके ट्रक को वापसी कराची लोडेड लेकर आए, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टर को वहां पे इंतजार करना पड़ता है और अल्टीमेटली कम पैसों में उनको कराची वापस आना पड़ता है। तो टाइमली एक्सेस में ट्रांसपोर्टर को ये प्रॉब्लम है कि ना ही उनके पास एक्सेस है कार्गो की और ना ही शिपर्स के पास एक्सेस है ट्रांसपोर्टर की। अगर एक मार्केट प्लेस होती है तो ये गैप हम इजीली खत्म कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे शिपर इजीली ट्रक बुक कर सके अच्छे प्राइसेस पे और ट्रांसपोर्टर अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। तो सर दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। शिपर को सिंपली ऐप के जरिए ट्रक की बुकिंग रिक्वेस्ट पोस्ट करनी है और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है जो कि हमारे बिलिंग साइकिल को इम्पैक्ट करती है। वो सारे मॉड्यूल्स मौजूद है इसके अंदर। अगर वो ना हो तो आपकी कोई भी बुकिंग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग एंड पेमेंट जो every booking will be disputed booking. So these modules must be embedded in the system. फिर ट्रांसपोर्टर के पास रिक्वेस्ट आती है, ट्रांसपोर्टर पे बिड अप्लाई करता है, शिपर को समझ में आएगा तो एक्सेप्ट करेगा, ड्राइवर्स के पास नोटिफिकेशन जाता है और शिपिंग स्टेटस वो लाइव ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं। एंड इस तरीके से शिपमेंट आखिरकार अनलोडिंग होने पे शिपमेंट कंप्लीट का स्टेटस आ जाता है सर। ये प्रोडक्ट के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे, इसको अगर आप देखें, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी लिमिटेशन है तो इतना आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे शिपर ऐप है, ड्राइवर ऐप काफी सिंपल टू यूज है, ट्रांसपोर्टर ऐप उससे भी ज्यादा सिंपल है और आप किसी से कोई रुपया चार्ज नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टर से बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे कि आप हमारा वेब एप्लीकेशन यूज करेंगे तो हम पैसे चाहिए आपसे, बिल्कुल भी नहीं। हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को डिजिटली मैनेज करें, अपने अकाउंटिंग को डिजिटली मैनेज करें और उनके बेसलाइन फंक्शन सारे इस एप्लीकेशन के तहत पूरे हो सकते हैं। अभी सही टाइम इसलिए है क्योंकि लॉजिस्टिक पूरी दुनिया में डिजिटल होने जा रहा है, क्योंकि इनएफिशिएंसीज अब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी इनएफिशिएंसीज हैं और हमसे ज्यादा है। तो अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखें, इवन इंडिया में देख ले, इवन अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, कीनिया, रवांडा, युगांडा, वहां पर भी हम जैसा मॉडल सक्सेसफुल हो चुका है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। और मार्केट में I am sure there is no single leader. However, there are VC-backed startups, but we need the results which are fruitful. So I can clearly say there is no single market leader. और ये टाइम है अगर इसमें प्रोफेशनल लोग अपना इनपुट दें, so our industry can be streamlined. और इनएफिशिएंसी की वजह से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपसे, कि उस पर काफी सारा लॉस होता है शिपर्स को और ट्रांसपोर्टर्स को। मार्केट साइज अगर फ्रेट अमाउंट की बात करें तो उस पे, अच्छा दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमारा सेक्टर इतना इनफॉर्मल है कि 2015 में वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की थी, उसके बाद 2018 में एक इनफॉर्मल स्टडी आई थी। हमने उन फिगर्स को लेते हुए और वर्ल्ड बैंक जो कि ऑथेंटिक इदारा है, उनके ग्रोथ रेट को देखते हुए आज की तारीख में $47 बिलियन की हमारी ओवरऑल रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की वैल्यू है और जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो है $3 बिलियन। बिजनेस मॉडल हमारा है जो मार्केट में सबसे कम कमीशन है, इवन मैनुअल ब्रोकर भी इससे ज्यादा कमीशन चार्ज करता है, लेकिन वी हैव द फाइनेंशियल्स इन प्लेस और जिस पे 5% में कंपनी प्रॉफिटेबल इजीली हो जाती है। और कस्टमर एक्विजिशन इसमें डिजिटल मीडिया का यूजेज होगा, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि आप कभी भी 20-30 मिलियन का कार्गो एक फेसबुक के एड पे नहीं दे सकते।
Again, this requires a consultative selling. ठीक हो गया सर? अनफेयर एडवांटेज हमारा ये है कि डोमेन एक्सपर्टीज है हमारे प्रोडक्ट में, वो सारी फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक डिजिटल लॉजिस्टिक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। अगर हम कहते अभी हैं जो कि ब्रोकर ब्रोकर का जी, कमीशन क्या होता है अभी? कमीशन इनका स्टेबल नहीं होता। हमारे पास ब्रोकर 3 जगहों पे कमीशन ले रहे होते हैं। एक होता है ट्रक का अपना ब्रोकर, जो ट्रक का ओनर है उसका ब्रोकर, वो ले रहा होता है 3-4 हजार रुपए एक बुकिंग के ऊपर, ठीक है। ओके उसके बाद एक आता है अड्डे का ब्रोकर। अड्डे का ब्रोकर ओके वो होता है जहां से रेट इनके ओपन हो रहे होते हैं। एक होता है मार्केट का ब्रोकर। मार्केट का ब्रोकर जो है वो देख रहा होता है कि यार अशफाक साहब को जरूरत ज्यादा है, इनको गाड़ी नहीं मिल रही, इनसे मैंने 15,000 रुपए ले लिया। बाबर साहब के पास 5-6 ब्रोकर है तो बाबर साहब से 5,000 रुपए ले लिया। तो वो देख रहे होते हैं कि मार्केट में आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना परेशान हो रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग अपनी कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। वो चार्ज बट भी ये कर रहे प्रॉब्लम होते हैं। रिजॉल्व हो जाएगा इससे, ये तीनों ब्रोकर वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, तीनों ब्रोकर को एम्पावर करके हमने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म मुहैया करना है उनको कि यार आपके पास कस्टमर के पीछे आपने नहीं जाना, कस्टमर के पीछे हम जाएंगे। आपके पास सिस्टम पे बुकिंग आएगी, आप अपनी ईमानदारी से इसके ऊपर बिड प्राइस लगाइए जो आपको समझ में आए। उसके बाद शिपर को लगता है कि यार खान साहब का जो बिड अच्छा है या न्याजी साहब का बिड अच्छा है, वो शिपर अपनी कैपेसिटी में उसको रेटिंग बेस के ऊपर सिलेक्ट कर देगा। थ्रू आउट द शिपमेंट, ऐसा नहीं कि हमने मैच करवा दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द ट्रिप हम इसको अपने सिस्टम से मॉनिटर कर रहे होंगे, स्टेटस को अपडेट कर रहे होंगे, किसी भी प्रॉब्लम आएगी उसको चेक कर रहे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कहते हैं कि लॉजिस्टिक 100% डिजिटल हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर मैनुअल काम बहुत है। बुकिंग डिजिटल होगी लेकिन ट्रक की डिप्लॉयमेंट, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए मैं तो कस्टम का हूं, मुझे पता है कि किस तरीके से गेट इन गेट आउट होता है, कहाँ पे कस्टम वालों से हमने बात करनी होती है, कहाँ पे चुंगी नाके पे बात करनी होती है। तो ये सारी चीजें ये मैनुअल होगा, लेकिन द ट्रिप इटसेल्फ विल बी एग्जीक्यूटेड डिजिटली। और वो स्टेज भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें थोड़ा टाइम चाहिए लेकिन वो भी हो सकता है। तो ये जितने भी 3 ब्रोकर हैं इनको हमने एलिमिनेट नहीं करना, इन तीनों को हमने एक ही जगह बिठाना है कि यार जो ट्रक का ओनर है जिसने 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली हुई है, उसको फायदा क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ठीक है ना? तो ये हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, हमारे फ्यूचर प्लान्स जो हैं उस पे लूज कार्गो की पूलिंग है और ऑन डिमांड वेयर हाउसिंग है, B2B कमर्शियल कार्गो ई फुलफिलमेंट, जो कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट भी है ही नहीं। अगर ये वाले लाइव देख लें तो हो सकता है कि कल शुरू भी कर लें। देखिए, we have got the amazing team, we have got the amazing idea. बट इम्पोर्टेंट चीज ये अवेयरनेस की बहुत तक जरूरत है, बिकॉज ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जितनी आप सब मिलके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी जो है डिजिटलाइजेशन टेक प्लेस होगी। अदरवाइज आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। योर कंपटीटर बहुत दफा वो आपको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और खुद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वट एवर एफर्ट यू आर डूइंग वो उनको भी सपोर्ट करेगी और आपको भी सपोर्ट करेगी, बिकॉज ये बिल्कुल। अच्छा, इकोसिस्टम डेवलप करना है आपको। एग्जैक्टली, लेकिन कोई इकोसिस्टम तैयार करने के लिए तैयार नहीं है, सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास एग्जैक्टली इधर आता है। लेकिन अब मैं ये आपको स्टोरी बताता हूँ जो पर्सनल मेरे साथ हुआ है। अब वाले 2 दफा तो अप्रोच कर लिए लोगों ने मुझे, ठीक है। मैंने कहा है कि तुम लोगों का सिस्टम काम नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा है कि यार अपने फाउंडर से मुलाकात कराओ, मैं डिसाइड का ओनर हूँ, फाउंडर मैं हूँ, मैं टेक में इतना एडवांस हूँ कि वहां तक पहुंचने में आपको टाइम चाहिए क्योंकि आप इंडस्ट्री के बंदे नहीं हो। यू कैन नॉट बी इंडस्ट्री लीडर बाय बर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सर आप भी समझते हैं शफाक साहब, एक्सपर्टीज नहीं आएगी, पैसा बर्न हो जाएगा। अब जब ये बात आती है तो उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, इन्वेस्टर पूछता है कि हाउ विल यू मेक मनी। उनका सवाल बेसिकली ये होना चाहिए, हाउ विल यू बर्न मनी। ठीक है ना? हम जैसे एंटरप्रेन्योर से पूछा सकता है कि यार आप पैसे कैसे बनाएंगे, और जो कुछ सिलेक्टिव बंच ऑफ पीपल है उनसे तो ये पूछा जाएगा कि यार कितने जल्दी पैसे जलाओगे। ठीक हो गया? तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है। फिर मैं इसके फाउंडर से मिलने गया तो मैंने कहा कि यार टेक में हम एडवांस हैं, ठीक है, फंडिंग आपके पास ज्यादा है, अगर हम दोनों हाथ मिलाएं तो बताइए क्या ख्याल है। जहां पे उनको मैंने कहा है कि जहां पे अगर आपको पहुंचने में 2 साल चाहिए, मेरे साथ जुड़ोगे तो 6 महीने पहुंच जाएंगे। और मैं अपना सीक्रेट सॉस कभी भी लाइव में डिस्क्लोज करता ही नहीं हूँ। वो भी मैंने इनको कहा है कि अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं
you can easily raise $50 million by 15 days. $50 million उस एक स्टेटमेंट के ऊपर they can easily raise. लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था शेयर करने में उनके साथ. मैंने तो ये कहा था कि अगर हम दोनों हाथ मिलाएं तो मैं एक्सपर्टीज अपनी डालूंगा, आप अपनी एक्सपर्टीज डालेंगे, ताकि इंडस्ट्री के अंदर एक कोलैबोरेशन से काम करें, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में जाके. लेकिन उसके बाद जो है ना, उनसे हमारी कुछ यानी कि चल नहीं सकी, तो जिसकी वजह से हम यानी कि उनसे फिर कंटिन्यू नहीं किया हम लोगों ने. हाँ जी, तो सर कंपटीशन का ये है कि कंपटीशन को मैं चेक करता रहता हूँ, उनके साथ बुकिंग रिक्वेस्ट शेयर करके. और इवन मैं ब्रिजलेंस की बात करूँ आपको, अगर आज मैं बुकिंग रिक्वेस्ट डालता हूँ तो कल जाके 24 घंटे के बाद कॉल आती है इनकी कि सर आपको कौन सी गाड़ी चाहिए. अगर ये एफिशिएंसीज है आफ्टर रेजिंग $10 मिलियन, तो मैं कहता हूँ कि मैं अकेला ही ठीक हूँ. फिर वो चीज है नहीं इसके अंदर कि आपने डिजिटली पोस्ट रिक्वेस्ट की आपने, और आपको रिस्पांस अगर 24 आवर्स के बाद आता है तो दे आर यानी कि वो फिर वो हो गया एक मैनुअल ब्रोकर में फर्क नहीं रहेगा. ग्रेट ग्रेट. देखो राज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप मैंने अपॉर्चुनिटी समझी एंड यू आर हियर. सो वो जो उनका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस मार्केट. So whoever basically understand that, और वो जो पहला मूवर होगा, जैसे you are saying that you have been basically build this complete digitally and you are giving this on a real time basis. So this efficiency is the only differentiator जो मुझे नजर आ रहा है अभी तक जितनी भी आपने बात की है. So I hope के वो जो चीजें जो आप हाईलाइट कर रहे हैं वो उसी तरह चलेंगी तो you will be the leader. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और दूसरा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जब इसको मैंने शुरू किया था 2018 में, तब तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि डिजिटल लॉजिस्टिक होता क्या है. लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह, अच्छा मेरा टारगेट था 2019 जनवरी में लॉन्च करने का, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, मुझको 6-7 महीने डिले करना पड़ा. स्टिल डिसाइडेड इज अ बूटस्ट्रैप कंपनी. आई एम द सोलो फाउंडर. जितना भी इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है मेरी अपनी जाती कमाई से हुई है, मुझको कहीं से भी कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आई. तो फिर इसको मैंने लॉन्च किया. अनफॉर्चुनेटली कोविड का पीरियड इसमें फॉलो डाउन हो गया, तो फिर वो चीजें थोड़ी सी आउट हो गई थी. फिर So सितंबर अभी तक आप क्या बिजनेस जनरेट कर पाए हैं? मतलब आई एम नॉट आस्किंग कोई बहुत कोई डिटेल में, बट अभी तक आप क्या बिजनेस जनरेट कर पाए? अच्छा, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन की होस्टिंग होती है AWS के ऊपर, Amazon के ऊपर. Amazon की अच्छी खासी कॉस्ट है. ना ही उस टाइम पे मैं किसी इंक्यूबेटर का हिस्सा था, ना ही किसी एक्सीलरेटर का हिस्सा था, तो मुझे क्रेडिट ऑफर नहीं किया गया था. तो AWS के अंदर भी ठीक ठाक पैसे सॉरी ठीक ठाक उसमें जो पैसे खर्च हो गए थे. फिर अपनी टीम भी बना रहा था, नया ऑफिस भी ले लिया था, तो उसमें ठीक ठाक पैसे इन्वेस्ट हो चुके थे. लेकिन बिजनेस जो मेरे पास कमिट हुआ था वो हुआ था 6 करोड़ रुपए का. ओके, 6 करोड़ का 6 बिजनेस. करोड़ रुपए स्पैन क्या था ये? व्हाट वाज द 3 मंथ्स स्पैन? का 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ स्पैन. 3 मंथ्स के लिए 6 करोड़ का कमिट बिजनेस था मेरे पास. लेकिन उसपे वो क्रेडिट की बात कर रहे थे, लेकिन उनको मैंने 80% कैश पे आमादा कर दिया था, बिकॉज नेगोशिएशन टेक टाइम. और जब ये चीजें एक्शन में आने वाली थी तो अनफॉर्चुनेटली ये मार्च में ही सारा कुछ आपके सामने है, जो फिर सितंबर तक सस्टेन किया. और सितंबर तक जो है सारा कैश जो मेरा इन्वेस्ट हो चुका था, फिर मेरे पास 2 महीने का रनवे बच गया था. अब 2 महीने के रनवे में अगर मैं उस टाइम पे तो ले ऑफ चल रहे थे सर, आपको पता होगा. ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम मार्च टू सितंबर अच्छे खासे ले ऑफ हुए थे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी ले ऑफ कर चुकी थी. तो सितंबर के बाद जब मेरे पास 2 महीने का रनवे बचा, तो मैंने फिर टीम बनाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वो एम्प्लॉइज के साथ मिसकमिटमेंट हो जाएगी. ओके. तो मैंने सोचा कि अब यानी कि किसी इन्वेस्टर से बात करने के काबिल हैं कि हमने एटलीस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अचीव कर लिया है. MVP हमारा ट्राई टेस्टेड है, जिसपे किसी भी कस्टमर की कंप्लेन नहीं आई कि आपके ऐप के अंदर ये प्रॉब्लम है, हम नहीं कर सकते. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. सक्सेसफुल ट्रिप्स कितने हैं तुम्हारे? सर वो हो जाते हैं, क्योंकि जनवरी के 20 तारीख को लॉन्च किया था इसको हमने. फरवरी का पूरा महीना चला गया था कस्टमर से बात करने में, क्योंकि बुकिंग आ भी रही थी, कैंसिल भी हो रही थी, क्योंकि 1 महीना तो चाहिए होता है ना लोगों को ट्राई टेस्ट करने में. फिर उन सबसे बात की. जब बात करते करते फिर टाइम इतना कम रह गया था कि हम कोई बुकिंग एग्जीक्यूट मार्च में नहीं कर पाए थे. और ये जो भी परफॉर्मेंस आई है 1 महीने के अंदर आई है. अगर मार्च में ऐसा कोई मिसहैपनिंग हमारे साथ नहीं होती तो कुछ ना कुछ बुकिंग एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं. ओके.
जी, तो इधर आके हम थोड़ा बैकआउट हो गए थे। तो सर हम सितंबर 2020 से फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं और इनिशियल आस्क हमारी 550,000 और ये 550,000 कोई एस्केलेटेड वैल्यू के ऊपर नहीं है, ये वो अमाउंट है जो कि एटलीस्ट चाहिए 1 साल के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। आउट ऑफ विच 72% विल बी इन्वेस्टेड इन द एचआर। प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए और वैसा प्रोडक्ट बन चुका है मेरा, जो कि लाइव भी हो चुका है। टीम जो है तो इसके आप अंदर क्या प्लान कर रहे हैं कि आप प्रॉफिटेबल कब हो जाएंगे? आफ्टर 3 इयर्स कितने अरसे? आफ्टर 3 years. So -70, what's this -70? -70 एक सेकंड से वो मेरा screen आ गया। ये जो नीचे 2024 के साथ है। जी सर एक सेकंड। So -70,000 Okay. So यानी कि you by were the saying कि जी by end of 2024 you will be Profitable. in profit. यस Okay. अच्छा इसमें एचआर में मैंने बंदे थोड़े ज्यादा रखे हैं क्योंकि इसमें आउटडोर काम ज्यादा होता है, तो सेल्स के लोग ज्यादा चाहिए होंगे। Okay. ठीक है, So क्योंकि ये इसमें कितने लोगों के साथ तुम इसको प्लान कर रहे हो? 72% क्या है एक्टिविटीज? ओके। इनिशियली फर्स्ट ईयर में हमारे होंगे 76 एम्प्लॉइज, इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ओके ओके। एंड बाय द ईयर 2023 देयर विल बी 107 एम्प्लॉइज। इस 107 में 76 भी एडेड है और 219 एम्प्लॉइज होंगे बाय 2024। और जो नंबर ऑफ ट्रक्स और ट्रिप्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं by the end of 2024 there will be 1000 more than 1000 trucks and more than 50,000 bookings. Okay. जी सर। So 550 million you need, 550 thousand you need for a year. Yes or sir. for 3 years. For a year. For a year. So For a year. means like 2022 में तुम्हें 550 चाहिए, 23 में 550 चाहिए and then 24 में 550 चाहिए। 23 में सर वो जो फाइनेंशियल्स का ब्रेकअप तो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा हुआ क्या 800,000 हमारा year 2 के अंदर फंड रेज होगा। ओके। क्या? ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। जी सर। So, Raj, you can stop sharing your screen and we can switch back to the conversation which we were having previously. And you guys can, if Ashfaq Saab has any more questions and you have it. No, I think that's okay. And I hope the message is there. And we will help you out definitely. As a CXO Global, हमें बाबर को भी एक्चुअली कनेक्ट करेंगे आपको कुछ लोगों के साथ, and whoever see this live, so probably you will be getting more attraction. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरा ख्याल है कि पिच डेक में एक चीज और भी इसमें डालनी चाहिए तुम्हें, एंड दैट इज योर एक्चुअली किस एरिया के अंदर यू विल फोकस। लाइक जो मेरा पहला सवाल था कि आर यू like planning to go with individual or किसी group of transports को, and how you will connect that. ये एक एरिया है कि जिसको तुम्हें यहाँ पर डालने की ज़रूरत है ताकि आपको जो कनेक्शन है वो वहाँ से वो कनेक्शन मिल सके। ठीक है, राइट। सिर्फ स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए पैसा इज इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली पैसा इज इम्पॉर्टेंट, फंडिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट there are other ways as well where we in CXO Global we have a lot of actually different industries से लोग available है that can also connect with you and can be help you out. So एक ये एरिया जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और बिल्कुल राज तुमने सही कहा। एक बात, मैं अभी एक सेशन में था तो मुझे एक बात, एक स्टार्टअप की तरफ से एक बात ये कही कि zeal is very much important. So the idea is very good, मार्केट में इसकी जगह भी है, बट जो तुम्हारा कमिटमेंट है, जो पैशन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि मुझे तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया है
एंड डिजिटल मेरी नज़र से तो अभी तक कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर नहीं गुजरा. So that's a very good initiative, or I wish you best of luck. Thank you so much. For your initiative, and इसमें जो भी help मुझसे भी पर्सनली तौर पे हो पाएगी, I will put into it. और जैसे बाबर ने कहा CXO Global, so CXO Global भी I hope इसमें अपना रोल प्ले करेगा. बिल्कुल इंशाल्लाह. Definitely. Brad Saab, do you have any questions for Mr. Ashfaq Saab? Any more questions? Anything which you like to ask specifically? कोई चीज हो आपके दिमाग में तो you are more than welcome. Otherwise, we head to the end of this show. हाँ बिल्कुल, इनसे बस यही मैं चाहूंगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो बाबर साहब के जरिए अशफाक साहब को हम डिस्टर्ब करते रहेंगे. क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं. आई एम नॉट द मास्टर ऑफ एवरीथिंग. हमें आप जैसे मेंटर की जरूरत है ताकि डे बाय डे हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जितने आप अपने एक्सपीरियंस से हमें उस चीज से निकाल सकते हो. हम साइलोज में नहीं निकल सकते. इंडस्ट्री कनेक्शंस होते हैं और Completely. अगर हम ये कहें कि अगर मैंने एप्लीकेशन बना लिया है तो मैं बड़ा चैंपियन हूँ, ये अपने आप से धोखा होता है. नहीं, डेफिनेटली मैं इसमें राज आपको एक बात ये बताऊं कि एक्चुअली एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग वो एक पार्ट है. देयर आर अदर एक्चुअली एरियाज जिसमें काम करने की जरूरत है. स्टार्टअप किसी एक चीज का नाम ये दिस इज एक्चुअली एंड टू एंड प्रोसेस. सो कम्युनिकेशन, this की execution, logistics, everything is basically part of you are now like अब आप एक किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है. you have a responsibility to execute it at end to end. You know that's आपको एक एंड से दूसरे एंड से, जैसे आपका सिस्टम है, जैसे आपका जो प्रोसेस है, उसमें आप एक एरिया से दूसरे एरिया तक एक्चुअली अपनी लॉजिस्टिक को पहुंचा रहे. तो इसी तरह आपको भी अपना ये जो पूरा ट्रांजिशन है उसको एंड टू एंड तक लेके जाना. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. So with that note, we come to the end of this amazing Mentor Up show. I hope Mr. Ashfaq and Mr. Raj enjoyed the show. Thank you, both of you, for being a part of Mentor Up. We will be back next week. Not next week, actually. We'll be back after 2 weeks on the same day, Tuesday, because we are doing this show fortnightly. And we'll be back with another mentor, another startup. So thank you for joining, viewers. And thank you for your time. Once again, Mr. Raj and Mr. Ashfaq Ahmed, I'm very glad you joined us and you provide your valuable insights to us. I hope you guys enjoyed. Thank you.